Hi students, today we are starting with a new chapter, Useful and Harmful Microbes, from your science syllabus. So let's start with the chapter. Having some basic ideas, you might be knowing what do you mean by microbes class. Microbes means small organism which we often called them as microorganisms from our basic standards. We have also learned that these microorganisms cannot be seen by our naked eyes. Till now, we were only aware about the concept of microorganisms. We were not knowing about are they useful or are they harmful. To give a brief discussion on this topic only, today we are going to learn about this chapter. So let's start with the chapter class. Useful microorganisms. Lactobacilli. Smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide, stain it with methylene blue and put a cover slip over it. Observe the smear under the 10x objective of a compound microscope and then with the powerful 6x objective. Did you notice the blue rod-shaped organisms moving around? They are lactobacilli, a kind of bacteria. So class, here you can see that there is an experiment mentioned. This experiment is about that you have to take a buttermilk. A buttermilk मतलब क्या होता है? Buttermilk मतलब छाछ. You have to take it and put on a glass slide, and this all steps are done by your class teachers and the science teachers. When you will observe the slide, you will see that there are blue rod-shaped organisms moving around. Now you will be shocked by seeing these organisms. What are these? These are the lactobacilli, a kind of bacteria. Lactobacilli, just underline this name. They are minute and rectangular in shape. You are aware that they are minute. You also know that we cannot see them as and we can see them only by the microscope, and they are rectangular in shape. Lactobacilli are anaerobic bacteria. They can produce energy without the use of oxygen. अब क्लास एनाएरोबिक मतलब क्या होता है? यहाँ दिया है कि मतलब उनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. मीन्स दे कैन सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. तो यहाँ हमने लैक्टोबैसिलाई के बारे में क्या पढ़ा कि लैक्टोबैसिलाई इज अ बैक्टीरिया. वो बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, and their body is rectangular in shape and they can produce energy without use of oxygen. मतलब they are anaerobic, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. एंड एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है क्लास? एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. The lactobacilli convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. Okay class, so here you can see that there is a process mentioned. What is the name of that process? Fermentation. मतलब कभी भी अगर आप शुगर देख रहे हो, lactobacillus convert lactose the sugar in the milk into lactic acid. This is called as fermentation. जो शुगर होता है, मिल्क में जो शुगर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं, और उसको ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ द मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. अब फ्रेंड्स, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? कोएगुलेशन मतलब किसी का चीज का जम जाना. देयर आर स्मॉल मतलब ऐसे गांठ पड़ती है ना, वैसे हो जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन. Thus, milk proteins are separated from other constituents of milk. This is what happens when the milk changes into yogurt. Yogurt has a specific sour taste due to the lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. So class, यहाँ क्या बताया गया है? ये अब लैक्टोबैसिलाई काम क्या करता है? ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है,
ये जो शुगर होता है मिल्क में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड यू आर ऑल्सो अवेयर दैट कोई भी अगर चीज़ एसिडिक है तो उसका पीएच 7 से कम होगा तो डिक्रीज होता है, जिसके वजह से अगर कोई मीडियम एसिडिक है तो सारे बैक्टीरियाज उसमें मर जाएंगे और वो चीज़ कैसे हो जाएगा, वो चीज़ यूजफुल हो जाएगा और वो पौष्टिक हो जाएगा। पौष्टिक मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट कोई भी मिल्क को जो योगर्ट या फिर कर्ड में कन्वर्ट मतलब दूध को दही में बदलने के लिए हमें कौन से बैक्टीरिया की जरूरत होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स स्टडी, डू यू नो what is meant by probiotic yogurt or other stuffs that are popular nowadays? Useful microbes like lactobacilli are added to these eatables. Such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve immunity. Class, you might be knowing that जब कभी किसी का पेट खराब होता है या फिर you have some disorders in your stomach, then you are advised to take yogurt. क्योंकि you also know कि जो दूध दही रहता है उसका पीएच क्या रहता है, पीएच बहुत कम होता है। अब पीएच बहुत कम होता है तो मतलब वो चीज़ क्या है, एसिडिक है। और एसिडिक होने की वजह से वो क्या करता है, जितने भी खराब बैक्टीरिया से मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया से उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे तो उसमें क्या बचेगा, सिर्फ यूजफुल बैक्टीरिया। एंड दैट यूजफुल बैक्टीरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर इम्यूनिटी, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। सो वही यहाँ बताया गया है, जब आप ऐसे ईटेबल्स में ऐसे खाना लेते हो तो एलिमेंट्री कैनल में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, उसको ये योगर्ट खत्म कर देता है, मतलब योगर्ट उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड etc. can be obtained by fermentation of milk. फर्मेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया, फर्मेंटेशन हम किसके मदद से करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से। और फर्मेंटेशन से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलता है। योगर्ट मतलब क्या बच्चों, दही। बटर मिल्क मतलब छाछ। घी यू नो, चीज यू नो, एंड श्रीखंड you know. Lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables etc. अब ये लैक्टोबैसिलर फर्मेंटेशन यूजफुल क्यों होता है इनके लिए, क्योंकि यू नो दैट सीडर, कोकोआ मीन्स कोकोआ पाउडर एंड पिकल्स, यू आर नो दैट दिस, ये जो चीज़ें होती है इनको आपको फर्मेंटेशन करने के लिए काम आता है। बिकॉज आप भी जाते हो, अचार को हम लोग सूखने के लिए रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम अचार को सूखने के लिए रखते हैं तो वो फर्मेंटेटेड होता है। और फर्मेंटेशन का मैंने आपको यूज़ बताया ही है। फर्मेंटेशन हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि वो सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है, सारे खराब चीज़ों को हटाता है। एंड यू ऑल्सो नो कि फर्मेंटेशन के लिए हमारे लिए कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये हमें ज़्यादा मिलता भी है, इसीलिए हम लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन को लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं। Lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पेट में अगर कुछ डिस्कम्फर्ट है, आपको मतलब ऐसा कुछ पेट में खराब लग रहा है, तो आप लैक्टोबैसिलस लेंगे, लैक्टोबैसिलस से बनी हुई चीज़ें लेंगे जैसे दही वगैरह। इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि दही का क्या रहेगा, पीएच कम रहेगा। पीएच कम रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। और एसिडिक रहेगा इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से। अगर हार्मफुल बैक्टीरिया मर गए तो हमारी बीमारी भी चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फील करेंगे और हम उन बैक्टीरिया से लड़ पाएंगे। फ्रेंड्स यू नो नन दैट पीएच, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच। पीएच अगर 7 से नीचे है तो कोई चीज़ एसिडिक है, पीएच अगर 7 से ऊपर है तो कोई चीज़ क्या है, बेसिक है। और 7 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है। एंड यू नो दैट जो भी चीज़ बेसिक रहती है वो हमें कड़वी लगती है और जो चीज़ें एसिडिक रहती है वो चीज़ें हमें खट्टी लगती है, जैसे दही, जैसे यू कैन सी लेमन, लेमन है सिट्रिक एसिड, दैट इज वाई इट इज सावर इन टेस्ट। Let's move forward. Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffalo is fodder fermented with the help of lactobacilli. Leavened fodder मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉडर मतलब होता है चारा। अब ये चारे को हम जब थोड़ा दूर या अलग रखते हैं तो उससे क्या होता है, उसको वो
फर्मेंटेड हो जाता है। और मुझे बार बार आपको फर्मेंटेड होने का यूज नहीं बताना पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्मार्ट, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, आप लोग स्मार्ट हो और आप लोग मालूम है फर्मेंटेशन क्यों जरूरी है। इसके वजह से वो काउज और बेफेलो का भी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। द लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम अदर टाइप्स ऑफ ब्रेड्स ऑल्सो। यू ऑल्सो नो डेट, क्योंकि ब्रेड्स को भी आपको फर्मेंटेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फर्मेंट करोगे, इसीलिए बोलते हैं ना ब्रेड इज न्यूट्रिशियस, क्यों? क्योंकि ब्रेड्स आर फर्मेंटेटेड। एंड यू ऑल्सो नो वाइन वगैरह ये सबको हमें रखना पड़ता है, जब ये प्रिजर्व करते हैं तब ये और बेटर हो जाएगा। आप सुनोगे घर में अगर हम अचार को कुछ और दिन रखें तो अचार को जितना दिन हम धूप में रखेंगे उतना अच्छा उसके टेस्ट आने लगता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में आज जितने भी फर्मेंटेशन हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोबैसिलस से हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट लैक्टोबैसिलाई इज द बेस्ट बैक्टीरिया फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्लास अभी तक हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं न्यू बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम। इसका नाम क्या है क्लास? इसका नाम है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इसका नाम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि टेक अ plantlet of fenugreek and groundnut or any other bean and sterilize into 3 to 5 solution of hydrogen peroxide. Afterwards, keep it in a 70% solution of ethyl alcohol for 4 to 5 minutes. Clean the roots with a sterile water and take thin sections of the root nodules. Select good section or place it in a solution of safranin for 2 to 3 minutes. Place the stained section of the glass slide, covered it with a cover slip and observe it under compound microscope. The pinkish rod-shaped organisms are the rhizobium bacteria. अब क्लास ये बैक्टीरिया तो हम कर नहीं सकते यहाँ ऑनलाइन तरीके से, सो इस बैक्टीरिया का मैं आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि जब हम उस सारे प्रोसेस करते हैं, ये सारे प्रोसेस करने के बाद जब हम रूट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो रूट्स के ऊपर पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, या फिर आप बोल सकते हो पिंक कलर के कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। कहाँ पर? रूट्स पे दिखेंगे। आप कोई चना का भी पेड़ ले लो, या अगर आप चना का पेड़ ले लो, सोयाबीन का पेड़ ले लो, ये सब का आप पेड़ लोगे ना तो उनके रूट्स को अगर आप देखोगे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यहाँ सेफ्रानिन क्यों बोला है क्लास? सेफ्रानिन से आपको अच्छे से दिखेगा। सेफ्रानिन कैसे हम बोलते हैं ना एक इंडिकेटर रहता है, वैसा है। तो सेफ्रानिन को आप लगाओगे ना तो उसके बाद देखोगे ना तो आपको वो पिंकिश कलर के दिखेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। नाउ क्लास ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्यों यूजफुल है, चलो हम देखते हैं। Rhizobium, role and importance of rhizobium. Rhizobia living in root nodules supply nitrates, and amino acid to that plant and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. Such a mutual beneficial relationship is called a symbiosis. अंडरलाइन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सिम्बायोसिस। तो इसका मतलब आप यहाँ देख सकते हो राइजोबियम क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है। एंड यू शुड नो दैट दिस नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल, बट हम ह्यूमंस उसका यूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है जो नाइट्रोजन का यूज कर सके। लेकिन प्लांट के बॉडी में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है जो नाइट्रोजन का यूज कर सके, बट दे टेक हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड विच इज कॉल्ड एज राइजोबियम। वो उनके फ्रेंड जैसा हेल्प करता है उनको। दे take the use of this bacteria rhizobium and they tell them to attach कि आओ आप मेरे घर में आओ, आप मुझे नाइट्रोजन दो फिक्स करके। नाइट्रोजन फिक्स करने मतलब क्या? दे फॉर्म नाइट्रेट्स एंड ऑल कुछ यूजफुल कंपाउंड। तो आप मुझे नाइट्रोजन दो, मैं आपको खाना दूंगा। तो ये उनके बीच में क्या बन जाता है? एक आप बोलते हो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि राइजोबियम उनको नाइट्रोजन देगा फिक्स करके और प्लांट राइजोबियम को खाना देंगे। और ये साझेदारी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ऐसा आप कहीं भी देखो तो उसको हम यही नाम देंगे, सिम्बायोसिस। आगे बढ़ते हैं। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले ही बताया नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके या फिर हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सके। क्या आपको लगता है हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ नाइट्रोजन भी जाता है?
लेकिन वो वापस भी आ जाता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन के हेल्प से फूड बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी में, लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले या नाइट्रोजन का फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन का यूज़ करने वाले स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में नहीं है, इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ नहीं ले पाते। लेकिन प्लांट भी नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ? राइजोबियम को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ये दोस्ताना को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। और वो राइजोबियम अब क्या करता है? उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रोड्यूस करके। However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plant like beans, sweet pea, soyabean, etc. as host. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिम्बायोसिस सारे प्लांट्स में नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया चना, मटर, ये सब जो लेजुमिनस प्लांट रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लेजुमिनस। लेजुमिनस क्यों? क्योंकि इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन इन प्लांट के अंदर फिक्स रहता है, इसीलिए इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? लेगुमिनस प्लांट। एज होस्ट। होस्ट मतलब क्या? जिसके अंदर ये जाकर रहेंगे। होस्ट मतलब क्या? जो इनको रहने के लिए घर दे, जो इनके लिए प्लांट है। और ये राइजोबियम कौन से प्लांट में पाए जाएंगे? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। इसीलिए नाइट्रोजन यूजफुल होता है। डू यू नो दैट हमारे अंदर नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन हम नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। जब आप मटर वगैरह खाते हो, जानते हो घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा चना खाता है, क्योंकि चना के अंदर क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है क्लास। और चना इतना ज़्यादा प्रोटीन, चना के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आई? बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस कंपाउंड। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड आर वेरी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। और ये लेगुमिनस प्लांट्स को ताकत देने वाला कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि उनका दोस्ताना जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से है। चलिए, अब आपको लैक्टोबैसिलाई भी समझ में आया होगा और आपको राइजोबियम भी समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। After harvesting a leguminous crop, the leftover roots of other plants parts are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population. The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilization and thereby their adverse effect. It has also helped to reduce expenses on fertilization and thus work to the benefit of farmers. अब क्लास पहले क्या होता था? पहले जब लोगों को राइजोबियम के बारे में नहीं मालूम पड़ता था तो उनको फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता था कि उनके प्लांट अच्छे से ग्रो हो, उनके अंदर प्लांट्स के अंदर अच्छा सा न्यूट्रिशन आए। लेकिन अब जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के साथ सिम्बायोसिस करके अच्छा न्यूट्रिशन दे देता है, तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और केमिकल फर्टिलाइजर से प्लांट भी बचा रहता है। ठीक। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जब हम लेगुमिनस प्लांट का क्रॉप काटते हैं या फिर खेती कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्लांट का बचा कुछ हिस्सा रहता है उसे हम वापस उस सॉइल में डाल देते हैं, क्योंकि राइजोबियम का पॉपुलेशन जैसे बना रहे और जब हम नया क्रॉप उगाएंगे तब उसमें भी राइजोबियम उनके रूट्स में प्रेजेंट हो और वो ग्रैम्स या फिर वो स्वीट पी या फिर वो सोयाबीन अच्छे से न्यूट्रिशियस बने और उनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड ज़्यादा रहे। तो कहीं ना कहीं राइजोबियम ने फार्मर्स को भी बहुत हेल्प किया है, उनके लिए एज अ फर्टिलाइजर सपोर्ट यूज हो रहा है और हम केमिकल फर्टिलाइजर से अपने प्लांट्स को बचा पा रहे हैं। तो आपको यूजेस समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। Nowadays seeds are coated with rhizobial solution or powder before sowing. After sowing, rhizobia enter the plant layer. These are called as rhizobial inoculation. Inoculation मतलब क्या क्लास? अंदर जाना। Inoculation मतलब अंदर जाना। This experiment has helped the supply of nitrogen to cereals and other crops beside leguminous crops. अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? राइजोबियम नेचुरली कहाँ तक? लेगुमिनस क्रॉप में ही रहता था, लेकिन हमारे साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है कि अब हम सारे प्लांट्स में राइजोबियम के कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो जो सीड्स रहते हैं उनके ऊपर हम राइजोबियल सोल्यूशन लगा देते हैं, मतलब ऐसा पाउडर या ऐसा सोल्यूशन जिसमें राइजोबियम बैक्टीरियास हो। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम ये कोटिंग लगाकर सीड्स को अंदर डालेंगे तो वो राइजोबियम भी सीड्स के अंदर घुस जाएंगे और जो प्लांट होगा उसके अंदर भी हमें राइजोबियम की पॉपुलेशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो सीड्स भी न्यूट्रिशियस होगा और हमें फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो दिस वे यू कैन जस्ट इमेजिन
कि फार्मर्स को कितना यूजफुल है और राइजोबियम, और हमें भी कितना यूजफुल है और प्लांट को भी कितना यूजफुल है। नाउ लेट्स स्टडी अ न्यू यूजफुल बैक्टीरिया। यहाँ भी वापस एक एक्टिविटी दिया है। अब वो एक्टिविटी विदाउट रीडिंग दिस एक्टिविटी आई विल एक्सप्लेन यू कि ये एक्टिविटी में दरअसल क्या बताया गया है। दरअसल क्लास ये एक्टिविटी में आपको ड्राई ईस्ट के बारे में बताया है। आपको ड्राई ईस्ट यू ऑल्सो नो डेट आपकी मम्मी भी कभी कभी यूज हुई, जब इडली बनाना है, इडली वगैरह बनाना रहता है, तो वो उस इडली का जो बैटर रहता है उसको हम फुलाने के लिए, या फिर उसको हम लोग फुलाने के लिए हम लोग 3 to 4 आवर्स पहले अगर ड्राई ईस्ट उसमें डालेंगे तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो जो बैटर रहेगा वो एकदम फूल जाएगा और पफी हो जाएगा। और ये जो इसको भी हम फर्मेंटेशन ही एक टाइप का कह सकते हैं। और ये जो फर्मेंटेशन होता है ये विद द हेल्प ऑफ होता है द मोस्ट यूजफुल बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं क्लास, इसे हम कहते हैं ईस्ट। और ये ईस्ट आर वेरी हेल्पफुल बैक्टीरियाज। और ये बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। Some of those cells may have sewn round bodies attached to them, and these are the new daughter cells of the yeast in the process of formation. तो अब यहाँ देख सकते हो कि आपको ईस्ट अकेला नहीं देखेगा। ये जो ईस्ट रहता है ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप पूछोगे ये सर ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब एक नया बच्चा फॉर्म करना, या फिर न्यू बेबी फॉर्म करना, या फिर गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो ये जो ईस्ट बैक्टीरियाज होते हैं ये लोग अपने ही शरीर में से एक नया ग्रोथ निकालते हैं, एक नया आउटग्रोथ निकालते हैं, जिसे हम बर्ड कहते हैं। और कुछ देर बाद ये अपने अंदर के सारे न्यूक्लियस वगैरह सब छोटे छोटे बिट्स में तोड़ के जब उन्हें दे देते हैं, उसके बाद वो बर्ड को अपने बॉडी से डिटैच कर देते हैं, जिसके वजह से वो बर्ड एक नया बॉडी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। असेक्सुअल प्रोडक्शन मतलब यहाँ कोई मेल फीमेल वगैरह नहीं रहता, एंड देन जो नया यंग वन फॉर्म हुआ है वो भी सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट इज द हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। तो आप यहाँ समझ सकते हो ये किस पे ग्रो होता है? कार्बन कंपाउंड्स पे ही, और किसी पे ग्रो नहीं होता। कार्बन कंपाउंड्स में से जैसे कि आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट। जो इडली का बैटर रहता है उसमें क्या रहता है? आपका उड़द का दाल रहता है, या फिर उसमें चावल रहता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही है ना, और इसी पे ये ईस्ट प्रोसेस करता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस with 1500 different species in existence. The yeast cell is an eukaryotic type of cell. Eukaryotic मतलब क्लास क्या? They have a proper nucleus. आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, आपको दिख सकता है कि there is a nucleus, और ये जो प्रॉपर न्यूक्लियस है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और ये बर्डिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। बर्डिंग का मतलब आपका मतलब मैंने बताया है अपने बॉडी से एक नया आउटग्रोथ फॉर्म करना, और वो आउटग्रोथ को बाद में अपने बॉडी से डिटैच करके एक नया लाइफ वो अलग सा बन जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं? उसने रिप्रोडक्शन भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स ऊपर के 3-4 पैराग्राफ आप रीड कर लेना, और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज रीडिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट यूजफुल एट ऑल। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। एक घर का एक्सपेरिमेंट जो आप हमेशा देखते हो, इडली वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो ईस्ट होता है, उनको हम फुलाने के लिए यूज़ करते हैं। आपके मदर को ज़्यादा मालूम होगा ड्राई ईस्ट के बारे में। आपको अगर थोड़ा डोमेस्टिक नॉलेज चाहिए तो आप अपने मदर को भी पूछ सकते हैं कि वो कैसे ड्राई ईस्ट को यूज़ करते हैं बैटर को पफी करने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दिया है ईस्ट के बारे में। लेट्स स्टडी देम। इन द अबव एक्सपेरिमेंट ईस्ट ग्रोस ऑन द multiplies very quickly due to carbon compounds in the sugar solution. In this the process of obtaining nutrition, each cell convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. तो यहाँ आप वापस देख सकते हो कि यहाँ फर्मेंटेशन कैसे हुआ है। वापस यहाँ शुगर सोल्यूशन का यूज हुआ है। हमने पहले ही पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट में शुगर रहता है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर रहता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है ना, ग्लूकोज देकर। तो उस ग्लूकोज को इसने किसमें, ईस्ट किसमें कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब
कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस का मतलब कन्वर्ट करता है। और फिर आप देखोगे जब ये प्रोसेस इडली में होता रहेगा तो आप आपकी मम्मी से आप कभी पूछना कि जब आपकी मम्मी ड्राई ईस्ट इडली में डालती होगी, उसके कुछ देर बाद आप देखोगे 3-4 घंटे बाद, तो वो जो इडली का बैटर रहता है, बैटर मतलब जो भी उसका आपने बनाया है इडली बनाने के लिए, उसके ऊपर आप देखोगे तो एक पानी का लेयर बनता है क्लास। वो पानी का लेयर पानी नहीं रहता है, इट इज अल्कोहल। और जब आप उस अल्कोहल को निकाल दोगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, उसमें से आपको स्मॉल स्मॉल पोर्स दिखने लगेंगे। दरअसल वो पोर्स कैसे बनते हैं आप जानते हो? जब ईस्ट अपना काम करता रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ट्रैप्ड रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इवेपोरेट हो जाता है। तो जो प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड ने लिया था, अब वो तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो वो प्लेस खाली हो जाता है, विच मेक्स द इडली बैटर पफी। इसीलिए आपको केक वगैरह ये सब पफी लगता है। और ये सब में कभी बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो कभी कभी उसमें ईस्ट यूज करते हैं, बिकॉज दीज टू मेक देम पफी। How is bread made? Find out how to use the solution prepared in the box experiment to make bread. Follow the recipe and make the bread. Find out and note the reasons why the dough rises and make the bread spongy. इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। डो मतलब क्या? वो जो मैटर रहता है। अब वो राइजेस क्यों होता है? क्यों आप जानते हो ईस्ट उसके अंदर मैंने डाला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाएगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड उनका ट्रैप रहेगा, कुछ देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एयर में चले जाएगा और जैसे ही वो एयर में जाएगा उसके बाद क्या होगा, यू नो डेट, जैसे ही वो एयर में जाएगा उसके बाद वो जगह खाली रह जाएगी और वो जगह स्पंज जैसा पफी हो जाएगा। और वो राइज इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है। Often alcohol is produced along, do you know पढ़ते हैं, often alcohol is produced along with sugar in sugar factories. Molasses is produced from sugarcane juice. It is rich in carbohydrate. Molasses is fermented with the help of yeast called Saccharomyces. In this process, ethanol alcohol is produced as a primary product and ester and other alcohols are secondary प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया जो इडली बनेगी, जो इडली का बैटर डो बनेगा उसके ऊपर कुछ लेयर के अल्कोहल बनेंगे। तो इसी मेथड को साइंटिस्ट या फिर मैन्युफैक्चरर्स ने यूज़ किया अल्कोहल बनाने में। उन लोग ने क्या किया, यू नो डेट शुगर केन के अंदर कितना ज़्यादा शुगर रहता है, उसे हम मोलासेस बोलते हैं। वो शुगर का नाम क्या है? मोलासेस। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शुगर रहता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। मिल्क के अंदर जो शुगर रहता है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। फिर शुगर के अंदर जो शुगर रहता है उसको सुक्रोज करते हैं। तो ऐसे हर शुगर का नाम है। तो जो शुगर केन के अंदर शुगर रहता है उसको हम मोलासेस बोलते हैं। अब ये जो मोलासेस रहता है इसको हम फर्मेंट करते हैं। दरअसल मोलासेस का, इसके शुगर का नाम नहीं है क्लास। मोलासेस मतलब आप समझ सकते हो जो भी आप गन्ने का जूस बनाने के बाद जो भी उसका मटेरियल बचता है जूस निकलने के बाद उसको मोलासेस बोलते हैं। इसी मोलासेस को हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करने का आप जानते हो फर्मेंट से क्या होता है, ईस्ट क्या करेगा, जब हम ईस्ट से फर्मेंट करेंगे तो वो CO2 और अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और अल्कोहल तो हमें चाहिए ही। और वो जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसी से तो मतलब अल्कोहल हमें चाहिए, अल्कोहल बनाता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस अल्कोहल। Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. Ethanol is also a smokeless and high quality fuel. Besides molasses, maize, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol. मतलब जो कुछ भी मिल रहा है उसको फर्मेंट करो और उसके अंदर से इथेनॉल अल्कोहल निकालो। अब हम इथेनॉल ही क्यों ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है इथेनॉल इज वेरी यूजफुल। इथेनॉल स्पिरिट, जो अदर स्पिरिट लैंप आपने देखा होगा आपके लेबोरेटरी में, वो किससे बनता है? इथेनॉल से। तो इथेनॉल इज वेरी यूजफुल और वो एक फ्यूल जैसा भी हमें हेल्प करता है। Glucose and fructose, the sugar present in the grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce alcohol, which is used for making wines. आप इसीलिए आपने सुना होगा आज तक जो वाइन्स बनता है वो ग्रेप्स से बनता है, क्योंकि इन्हें जब हम ग्रेप्स की जूस के अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों रहते हैं, जो फ्रूट्स के अंदर शुगर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज। तो ये सब जो रहता है इन शुगर्स को हम फर्मेंट करते हैं और उसमें से अल्कोहल बनाते हैं। तो मतलब आपने आज समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ईस्ट हमें कितना यूजफुल है। तो आज के पूरे चैप्टर में क्लास, आज के पूरे चैप्टर में हमने ढेर सारे तो नहीं बल्कि जबकि हमने 3 बैक्टीरियाज पढ़े एंड वी लर्न दैट दीज 3 बैक्टीरियाज हाउ यूजफुल फॉर अस। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हमें कितने सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है, ईस्ट बैक्टीरिया भी हमें फर्मेंटेशन में काम आता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, दोनों हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं और सब हमारे तीनों बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। राइजोबियम कैसे फार्मर्स को यूजफुल है, कैसे
हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे प्लांट के साथ अपनी दोस्ती निभाकर हम सबको बेनिफिशियल करता है। तो यहाँ मैं स्टॉप करूँगा हमारा ये वाला लेक्चर एंड वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप दैट यू विल स्टडी एंड स्टडी वेल एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट।